मैं कलें दो मैं कलें दो ना क्या ऑन कर लीजिए यहाँ से ऑन कर लीजिए की रस्म इजरा की तकरीर की सदारत जनाब प्रोफेसर तैयब सिद्दीकी साहब साबिक सदर शोबा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा और ज़ेरे निज़ाम जनाब मुनव्वर आलम राही साहब फरमाएंगे। सदारत आप रहिए भाई, आप सदारत कीजिए। मेरे छोटे भाई मिनिस्टर हैं। मैं गुजारिश करूँगा राही साहब से कि वो तशरीफ लाएं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सबसे पहले मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हम्दो सना के फूल निशावर करता हूँ कि आज के इस रस्म इजरा की तकरीब में आप अहले इल्म व दानिश्वर के अलावा आसमान सियासत के रोशन चांद सितारे सरज़मीन दरभंगा पर जलवा अफरोज़ हैं। हम अपनी जानिब से मौजूद हाज़रीन की जानिब से अहले शहर दरभंगा की जानिब से और बिलखुसूस अदबी मरकज़ मोहल्ला शेर मोहम्मद हीरो और अब तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में ताख़ीर हो चुकी है। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आवाज़ देता हूँ जनाब हाफिज़ असद मोइन साहब को कि वो आएँ और प्रोग्राम का आगाज़ शहंशाहों के शहंशाह के कलाम से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह
اس کی شان کو میں مؤدبانہ درخواست کرتا میرا ہوں کہ شاگرد آپ سے پرزائڈ کروا دو. میرا شاگرد 4 سال سے جو ہے وہی خوش یہ آپ کی کاغذی ہے. تو ہمارے لیے تشریف فرما ہے جناب محمد آفتاب عالم صاحب. بہت بہت نوازیں. آئیے جناب ریاض احمد سے بیٹا بہت بہت مبارک. اب میں آواز دیتا ہوں ڈاکٹر جمیل احمد صدیقی صاحب کو. اب میں آواز دیتا ہوں جناب قاری نیاز صاحب اپنے والد صاحب کو نوازتے ہوئے. صاحب کو خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے درمیان اہل علم و دانشور اور سیاسی رہنما تشریف فرما ہیں ان کی کارکردگی مختصر غلط میں ایسے فخر ہیں بلکہ یہ ہمارے قوم و ملت کے مسائل کو خود تلاشتے ہیں اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اردو نوازی کا یہ عالم ہے کہ جو آپ جس تقریب میں تشریف فرما ہیں یہ بھی اردو نوازی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور مثلا یونیورسٹی کی تحقیقی مقالے کا اس تاریخی رسم اجرا کی تقریب کے موقع پر سب سے پہلے اپنے حربی عزیز جناب شاہد علی خان صاحب, ارشاد اللہ صاحب, ڈاکٹر احمد نسیم معذور صاحب, پروفیسر طیب صدیقی صاحب حصہ لیا, بلکہ پرتگالیوں, فرانسیوں اور انگریزوں نے بھی نمایاں کام کیا. اس کی بنیاد خالص ہند آریائی عناصر ہے. عربی الفاظ کی شیرینی ہے, اس میں دلکشی, دلربائی اور توانائی پیدا ہے. اردو کی سر صوفیاء کرام کی ارشادات اور فرمودات میں اردو کی ابتدائی نشوونما اور اس کی ترقی و ترویج میں اہم اور بنیادی کام انجام دیا. میتھلی زبان کے حاصل میں بڑا اہم رول ادا کیا اور اپنی تخلیقات عربی, فارسی اور ترکی کے الفاظ کو بکثرت استعمال کیا. المختصر ہے کہ مسلم حکمرانوں کی فتوحات, صوفیاء کرام کی ارشادات اور یہاں کے عوام سے ان کے اتباع و اختلاط اور ان کی زبان سے یہاں کی علاقائی زبانوں کی آمیزش کے نتیجے میں ایک نئی زبان وجود میں آئی جو آج اردو کے نام سے مقبول اور مشہور و معروف ہے. اقلیتی فلاح کے وزیر جناب شاہد علی خان صاحب کی سربراہی میں اردو کے ساتھ ساتھ اقلیتی طبقہ کے لوگوں کی ترقی ہوئی جو ایک تاریخی قدم ہے. اردو کے ساتھ ساتھ اخیر میں ایک بار میں پھر اپنے مہمانوں اور دیگر شرکاء اعظام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم اور تاریخی تقریب رسم اجرا میں شرکت کے لیے اپنا بیش قیمتی وقت نکالا اور زحمت کی. ہندو مسلم اتحاد زندہ باد, اردو زندہ باد. والسلام علیکم. سامعین کرام, ابھی قاری نیاز احمد قاسمی صاحب خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے کہ اپنے مہمانان کو زحمت دوں. میں جناب شاہد علی خان صاحب کی خدمت میں 4 مصرے حاضر کرنا اپنا اخلاقی فرض اس لیے سمجھتا ہوں کہ بہار اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد رمضان کے الوداعیہ نغمات میں مجھے 2 بار محترم کے ہاتھوں سے ایوارڈ لینے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو میں ان کی خدمت میں 4 مصرے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل شہر ہیں کرتے تجھے سلام, ہم اہل شہر ہیں کرتے تجھے سلام, اونچا ہو اور بھی شاہد تیرا مقام, اور پوچھا جو بزم میں ہے کون مہتاب, پوچھا جو بزم میں ہے کون مہتاب, تیرا ہی آ گیا سب کی زباں پہ نام.
تو میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ آئیے اور اپنے مہمان سے رسم اجرا کی تقریب انجام دیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کوئی طریقے سے بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حافظ صدیقی صاحب. اللہ کرے اور بھی ایسے بنو کہ ہوا تلاش کرے. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام میں ایک اور پروگرام رکھا گیا ہے، وہ ہے ہمارے شہر کے نوجوان صحافی کو اجازت دینا ہے، اجازت دینا ہے. تو قابل مبارکباد ہیں وہ صحافی حضرات جو نوجوان ہوتے ہوئے بھی صحافت کے فرائض کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے آواز دوں گا جناب شاہد علی خان صاحب کو زحمت دوں گا کہ جناب فردوس صاحب کو بیورو چیف راشٹریہ سہارا تشریف لائیں اور ان کو اجازت دیں. شاہد علی خان صاحب نوازتے ہوئے بہت بہت مبارک. سیدھا ہو جائیے، سیدھا ہو جائیے، سیدھا ہو جائیے، سیدھا ہو جائیے. اب میں آواز دیتا ہوں कभी सवारी भी तो पकड़ जाएगी इतना देर से. لیا ہم نے حالات سے شیشے کا بدن مانگ لیا. سب کھڑے تھے تقدیر کے دروازے پہ، لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا. تو میں سب سے پہلے آواز دیتا ہوں جناب ابو شہمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی باتیں کہیں. شاندار تقریب کی صدارت کر رہے ہیں اردو کے بہترین. آج کے اس پروگرام میں ہم لوگوں کے بیچ بہت ہی محنتی لیڈر اور جو جب سے وقت بورڈ کے چیئرمین بنے مہانگر صدر ضلع آفتاب کے نائب صدر علی حسن انصاری صاحب، جنتا دل یوتھ اقلیت کمیٹی کے ریاستی سیکرٹری اعظم صاحب، ظفر اللہ خان صاحب، نفیس گنڈو صاحب، اپنے منتری جناب شاہد علی خان صاحب کا خصوصی طور پر مبارکباد جناب شاہد اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ لوگوں کے بیچ میں آگ نہیں بننا چاہتا. ہم لوگ اپنے منتری صاحب کو سننے آئے ہیں، جناب چیئرمین صاحب کو سننے آئے ہیں. یہ رائٹر اور اتنی اچھی کتاب لکھنے کا انہوں نے اور شاعرانہ انداز میں کیا ہے. میں نے تو اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، بہت شارٹ کٹ میں یہ بولنے کا موقع ملا اور بہت اس بات سے مجھے خوشی ہے کہ میرے ہی پرکھنڈ عظیم شخصیت بزرگان دین میں حضرت مولانا بصارت کریم رحمۃ اللہ. اور آج کی اس پستک کے وموچن کرتا متھلا اور متھلا یونیورسٹی یعنی متھلا کی سنسکرتی کی وموچن کرتا بہار سرکار کے غریب غربوں اور السنکھیکوں کی آواز
और दरभंगा जिला से खास अतिथि बिहार राजधानी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद इरशाद मुल्ला साहब, हमारे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री मौलाना एजाज अहमद साहब, दरभंगा नगर अध्यक्ष हमारे पार्टी के नेता भाई सुहेलउद्दीन अंसारी साहब, पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष आले बेग साहब, आजम हुसैन साहब, आफ्ताब आलम साहब, से आए हुए तमाम महान चिंतक भाइयों एवं यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि इस किताब में मिथिला की संस्कृति का उल्लेख और यह विमोचन हमारे आदरणीय माननीय मंत्री जी के हाथों हुआ। माननीय मंत्री जी का नजर है दरभंगा जिला जब भी कोई छोटा समस्या या छोटी सी बात लेकर माननीय मंत्री जी के पास हम लोग भी कई बार 7 साल से आते जाते रहे हैं। जब कोई समस्या माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं तो बड़ी गौर से पूछते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए मंत्री जी लगते हैं और कराते हैं। और इसी क्रम में आज दरभंगा जिला में भी माननीय मंत्री जी का जो आगमन हुआ, इसके लिए हम लोग अपनी पूरी पार्टी की ओर से, पूरे इलाके की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। से जमाने का भला हो यार, खिदमत खल्क में गुजरे मेरा लम्हा लम्हा, खिदमत खल्क ही मकसूद मेरा हो यार। हर मुसलमानों को अमूना ये जज्बा दूर रखना चाहिए। इस जलसे के मेहमान खुसूसी इज्जत माब वज़ीर अक़लियती फलाह जनाब शाहिद अली खान साहब, मदरसा बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन हज़रत मौलाना एजाज अहमद साहब, इस जलसे के रूह रवां और जिन्होंने इस जलसे को ऑर्गेनाइज किया, जनाब अकील अहमद सिद्दीकी साहब, जनाब मनोवर राना साहब जो नज़ामत कर रहे हैं जलसे की, श्री सुनील भारती जी, हाफिज मोइन साहब, तारी नियाम मुजफ्फर कासमी साहब, हाफिज अबू सामा साहब और यहाँ पे इस मिथिला के बुजुर्ग दोस्तों, ये मिथिला उर्दू तहजीब और तमद्दुन का गहवारा रहा है। ये सदियों से जमाना इस चीज को जानता है। उर्दू के तहजीब तमद्दुन, शेर व शायरी की रोशनी से बिहार में सारी दुनिया है। आपने मिथिला को, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे उस्ताद हज़रत सिद्दीकी साहब को पढ़नी थी, लेकिन उन्होंने इस नाचीज को ये हम जिम्मेदारी दी। मैं इसके लिए आज अपना वो फख्र महसूस करता हूँ जिसका मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। ये उनका बड़ापन है। मेरी ये दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमारे उस्ताद मोहतरम को देर तक हम लोग के साया बगल रखे, सेहत और ईमान के साथ। हज़रात, ये दरभंगा की सरजमीन है, यहाँ हजारों अदबा शोरा दरभंगा की जमीन को फैज़याब किया।
जिस शऊर तबके में, दानिश्वर तबके में प्रोफेसर डॉक्टर तैयब सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। दरभंगा का बिल्कुल ये नौजवान तबका बहुत ही अच्छी तरह से उनको जानता है। जाहिर सी बात है, जौहर साहब ने एक शेर कहा था, देहात का बोला था कि बाबा थोड़ा ना बहुत तो छोड़ो थोड़ा। तो अकीद हैदर सिद्दीकी साहब जिन्होंने मिथिला यूनिवर्सिटी था, उस एतबार से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये भी हम समझते हैं कि दरभंगा की जमीन काफी वसी है। जैसा मैंने अभी कहा कि हजारों की तादाद में यहाँ उलमा, शोधा, शुरा, अदीब, नाबिनिगार, मुसन्निफ पैदा हुए और काम किए हैं। कुछ छोटे भी होंगे, लेकिन मैं उनको मिथिला और मिथिला यूनिवर्सिटी किताब के हिजरा के प्रोग्राम में के सदर सैयद सिद्दीकी साहब, निजामत कर रहे जनाब मनव्वर राही साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह साहब, मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना एजाज साहब, हमारे पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष मेरे मित्र सुनील भारती जी, जनाब सोहेल अंसारी साहब, सीतामढ़ी जिला के अखिलेशी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जनाब आफ्ताब साहब, जनाब आले बेग साहब, अबू सामा साहब, और इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर अकील साहब को मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने मिथिला और मिथिला यूनिवर्सिटी पर अपनी एक किताब लिखी है। उसमें हम किताब बेहतर है, काफी दिनों से ये इस काम में लगे हुए थे। मुझको कई साल पहले इन्होंने कहा था कि ये किताब लिख रहा हूँ। किताब लोगों के बीच चली गई। आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि मिथिला, असली मिथिला, मिथिला के पंचांग में लिखा हुआ है कि जिसके पूरब में अधवारा हो, जिसके पश्चिम में बागमती हो और बीच में लक्ष्मणा नदी हो, वही असली मिथिला है। भले ही आप मिथिला भाषा पर आपका कब्जा हो, लेकिन मिथिला सीतामढ़ी है। बगैर सीतामढ़ी के मिथिला हो ही नहीं सकता। जनाब अकील साहब ने उस लाइन को छोड़ दिया जो मैंने देखा है, लेकिन अकील साहब ऐसी सरजमी से आते हैं जो बिहार और इस हिंदुस्तान के सबसे बुजुर्ग की सरजमी है। हजरत मौलाना बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी है। वहां से आकर दरभंगा में पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बेहतर और इनके जरिए आज आपसे रूबरू होने का, अपनी बात भी कहने का हमें मौका मिला।
जहाँ तक सवाल है अक़लियतों के डेवलपमेंट का, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कई यहाँ तो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, दरभंगा तो हम लोगों के नॉर्थ बिहार और खास करके अक़लियतों में का हेड क्वार्टर है। यहाँ इंटेलेक्चुअल्स तालीम याफ्ता लोगों का, लेकिन आप उठाकर ये देखिएगा कि कई कमेटियां, सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा और कई कमेटियों ने पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में और सभी जगहों पर ये लिखा है और कहा है कि अक़लियतों में मुसलमानों की हालत हर एतबार से, हम दलितों से भी पीछे हैं। हमारी हालत एजुकेशन में न के बराबर है। हमारी जो आबादी है उसमें दीनी और दुनियावी तालीम दोनों में गिरावट आई है और लगातार। लेकिन इधर कुछ दिनों से एक अच्छा देखने को मिल रहा है कि बच्चों के पढ़ने के, कैसे मेरा बेटा पढ़े, पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल पैदा हो गया है। और अब मुझको लगता है कि जो स्पीड पकड़ा है खास करके मुसलमान, मुझको लगता है कि काफ़ी बेहतर होगा। मैट्रिकुलेशन का मैं तो यहाँ कई बार आता रहा और लोगों को बताते रहा कि 2627 से हमने स्टार्ट किया था मैट्रिकुलेशन में, फर्स्ट डिवीजन जो पास किया था, आज बढ़कर 25,220 लड़का हमारा फर्स्ट किया है। 6 साल में हमारा ग्राफ बढ़ा है। और मैट्रिकुलेशन से लेकर अभी स्कॉलरशिप जो मेरिट का मिक्स है या स्कॉलरशिप है या लोन है, उसमें ये देखने को मिला है कि पूरे बिहार का जो दूसरे स्टेट में हमारा बच्चा पढ़ रहा है वो काफी अच्छी तादाद में पढ़ रहा है। जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है, ये काफी बेहतर MBA कर रहा है। हमको जो मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, उसको बेहतर है। लेकिन और स्पीड पकड़ाने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है कि और बेहतर से बेहतर हम कर सकें। और एक माहौल जो बना है, अभी माहौल जो बना है, जो माहौल पढ़ने लिखने का बना है, वो और मजबूत हो। दरभंगा की जो सरजमी है, यहाँ से अगर शुरुआत होता है तो मुझको लगता है कि पूरे बिहार में इसका असर पड़ेगा, खास करके नॉर्थ बिहार में तो पड़ेगा ही। हम लोगों ने शुरू किया, जब ये मैट्रिकुलेशन वाला देखा तो उसके बाद से हम लोगों ने शुरू किया कि जो हमारा बच्चा MBA में पढ़ता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में पढ़ता है, पैसा नहीं है उसको, तो उसको लोन देने के लिए, तो आपको बता, जिसने अपनी योजना शुरू की कि हम अपने बच्चों को 1 लाख रुपया हर साल देंगे 4 साल तक, और उसका सूद न के बराबर है, और वो उनके फादर और पेरेंट्स को पैसा अदा नहीं करना है। जब वो लड़का पास कर जाएगा और नौकरी करने लगेगा तो वो पैसा देना है। ये अकेला पहला बिहार है जिसने ये तय किया। मुसलमानों के पास अगर पैसा होता, अगर तो फिर लोन लेने की जरूरत क्या थी। इसलिए हम लोगों ने शुरू किया और कई योजनाएं शुरू की जिससे दरभंगा और बच्चों को फायदा, दरभंगा भी और इस इलाके के बच्चों को फायदा हो रहा है। हमारे हजरत अभी मौलाना एजाज साहब बोल रहे थे कि ये काम नहीं हुआ और हमने कुछ नहीं किया। कोशिश करते हैं, आप नहीं किए होंगे, आपकी दुआ भी लगी होगी, या जुबान में तासीर खत्म हो गया और दुआ भी करते होंगे तो नहीं होता होगा। जहाँ तक ये सवाल है मुशायरा का, उर्दू एकेडमी मुशायरा कराती है और उर्दू एकेडमी काफी दिनों के बाद एक्टिविटी में आई है, काम कर रहा है। उर्दू पर हम लोग काम कर रहे हैं और उर्दू के कई जो शायर हैं या अदीब हैं, उन सबको जहाँ तक बन पाया है हम सब लोगों ने मदद की है।
यहाँ जनाब मनोवर राही साहब यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप प्रोग्राम, टाइम और शायरों का लिस्ट आप सब लोग बैठ कर तय करिए। जिस शायर का तय करिएगा और जहाँ तय करिएगा इस काम का मॉनिटरिंग करिए और हमको बताइए। जो पैसा लगेगा उर्दू एकेडमी देंगे। मुशायरा बढ़िया मुशायरा करेंगे, बेहतर मुशायरा करेंगे। वैसे इन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया, जस्ट बगल में दरभंगा के बगल में कुपड़ी में मुशायरा हुआ था, ऑल इंडिया मुशायरा, काफी बेहतर मुशायरा हुआ था, उसमें ये गए थे। हाँ, तो ये है। और अभी कई साथियों ने कहा कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। देखिए अभी ये काम हमारी स्टेट में, हम तो शुरुआत की है लेकिन सब स्टेट में हो रहा है। और हमारी जो हैसियत है, हम सब की जो हैसियत है, हमने पहले भी कहा है कि मुसलमान जिसको वोट करेगा वही स्टेट में और इस मुल्क में राज करेगा। मुसलमान अगर वोट नहीं किसी को करेगा तो वो कतई कभी हुकूमत नहीं कर सकता है इस मुल्क और इस स्टेट में। मुसलमान का वोट, मुसलमान अब वोट जज्बात पर नहीं देगा। जो हमारा काम करेगा उसको मुसलमान वोट देगा। आज तक इतिहास है मुसलमानों का कोई लीडर मुसलमान नहीं हुआ, चाहे वो कयूम अंसारी से लेकर बिहार कोई नहीं हुआ। यहाँ पहले लीडर हुए जगन्नाथ मिश्रा जी, उसके बाद लीडर हुए लालू यादव, मुसलमान है। यहाँ सबसे सीनियर लोग बैठे हैं, अभी सरजमीन पर कही रहे हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन नहीं हो पाए। हमारे गुलाम सरवर साहब नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश में आप उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जितने लोग हुए हैं मुसलमानों के लीडर सब गैर मुस्लिम हुए हैं। ये हमारे लिए बदकिस्मती है। और हम कहेंगे कि हम काम नहीं करते हैं। हम जब तक हैं और जितना दिन है पूरे हक़ ईमानन पूरा बढ़िया से और ईमान के साथ काम करेंगे। जितना दिन रहना है अल्लाह रखते हैं। इज्जो मंतशाओ वतज़िल्लो मंतशाओ, किसी की हैसियत हटाने और रखने की नहीं है। हम काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। जिस दिन मुझको लगेगा कि काम खराब हो रहा है या जो मेरी ख्वाहिश है कि हम अक़लियत का और मुसलमानों का काम करें और वो काम हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हमको एक मिनट भी रहने की जरूरत नहीं है। एक मिनट भी मैं नहीं रहूंगा। मैं अल्लाह ने आप सब कुछ से नवाजा है। हम काम करने के लिए आए हैं, खिदमत करने के लिए आए हैं। हमको राजनीति नहीं करनी है, खिदमत करते हैं। हम बगल में थे, पूरे बिहार भर के लोग लग गए, अक़लियत के लिए लोग लग गए, जनता दल यूनाइटेड के लोग लग गए, भाजपा के लोग लग गए, आरजेडी के लोग लग गए, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम के लोग लग गए कि किस तरह से शाहिद अली को हरा दें। जब वोट हो गया तो सब गिनती कागज पर जोड़ने लगा और कहा कि तीसरे नंबर पर है। उसके बाद से जंग शुरू हो गया। लोगों ने परेशान हाल लोग गरीब गुरबा साहब से मिला और कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो सब लोग कहा तीसरे नंबर पर है और जंग शुरू हो गया है। हम कहा कि हम भी तो उम्रा करके आए, नॉमिनेशन के देने आए थे, तो उम्रा करके सीधे नॉमिनेशन देने आए थे। घसीटते घसीटते किसी तरह से लोगों की दुआ, हमने कहा कि हम वोट से नहीं जीते, हम लोगों की दुआओं से जीते हैं। कोई आदमी अगर काम करेगा, खिदमत करेगा तो लहका नहीं जाएगा। पॉलिटिक्स करेगा, कहीं ना कहीं अगर मन दिल में होगा, मन में होगा कि इस आदमी से हमको वोट नहीं मिलने वाला है, इसका हम काम नहीं करेंगे, तो उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। सबसे आखिरी मैदान पर मुसलमान है। इसकी खिदमत अगर कोई नहीं किया, इनके बच्चों को सही राह नहीं दिखाया, तो सियासत किस काम का? अगर आपको बेहतर काम करना है तो बेहतर
अब देखिए हम सियासत करते हैं, हम जिस जगह पर हैं मिनिस्टर हैं, हमारा बच्चा हम स्कूल में, हम अपने क्षेत्र में भी मैं कहता हूँ कि पैसा सरकार के पास रहेगा तो सड़क बनेगा, पुल पुलिया बनेगा, नाला नाली बनेगा। सरकार के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन एमएलए, वार्ड मेंबर और एमपी का दूसरा भी फंक्शन है। हमारा बच्चा हमको देखेगा तो पूछेगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका रहन सहन क्या है, ये कैसा है। वो हमारा बच्चा जो 8वां 9वां 10वां 11वां में पढ़ता है, ये हमारे रहन सहन, हमारे हर एक्टिविटी को वो एडॉप्ट करता है, वो लेता है। अगर हमारी एक्टिविटी बेहतर नहीं होगी, पूछेगा कि आपका एमएलए क्या गया अंगूठा छाप, तो कहेगा इज्जत पाने के लिए अंगूठा छाप लाना बेहतर है, तो पढ़े क्यों। हमने पहले भी कहा और सब लोगों को कहा कि वार्ड मेंबर से लेकर पार्लियामेंट के मेंबर तक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नहीं करिएगा तो किताब लिखे रह जाएंगे, लेकिन आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। ख्वाहिश आज बन गई होगी कि आज हम भी किताब लिखना आपसे किसी न किसी टॉपिक पर और हम इजरा हम भी कराएंगे। यही जब तक ये कंपटीशन हम लोगों में नहीं आएगा तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमको हुक्म दिया और आपके हुक्म की तामील करते हुए हम यहाँ हाजिर हुए। कुछ कमी रह गई हो तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन सब लोग मिलकर एक नया माहौल पैदा करिए और बच्चों के को तालीमी रुझान पैदा करिए, उनके पेरेंट्स को उनके अंदर जज्बा हो पढ़ाने का कि हमारा बच्चा पढ़े। और हम टारगेट अगर फिक्स कर देंगे बच्चों में, ये हम टारगेट फिक्स करेंगे कि हमको ये हासिल करना है और कोशिश करिएगा टारगेट पर आप, तो कोई किसी की हैसियत नहीं है कि हमारे हमको टारगेट छूने नहीं देगा, पूरा नहीं होने देगा। टारगेट अगर जिंदगी में ये तय कर लेगा कि आपको ये हासिल करना है तो इंशाअल्लाह जरूर हासिल होगा। इसलिए हम आप सब आए यहाँ और आज इस किताब का मिथिला और मिथिला यूनिवर्सिटी का इजरा हुआ। हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह फिर मुशायरा कराएंगे। हजरत मौलाना एजाज साहब के देख रेख में और मनोवर भाई के देख रेख में होगा, उसमें इंशाअल्लाह अब जल्दी कराना है तो अभी नवंबर में कराइए, बेहतर हो जाएगा, बेहतर होगा। जो पैसा होगा हम देंगे। अरे खुदा हाफिज़। सामने में दे रहा है लड़का कहाँ जाना है।